Yes, good morning to all. My screen is visible. Very good. So just today there are two things. First one is कि जो हम लोगों ने कल क्विज की थी, तो हम लोग क्विज का राइट आंसर चेक कर लें। मैक्सिमम आप लोगों ने सभी ने ठीक किए थे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस में डाउट हो सकता है आपको या कंफ्यूजन हो सकता है, तो उनको हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। और सेकंड थिंग इज वन टॉपिक दैट आई ऑलरेडी डिस्कस you many times, that just we have to cover this particular topic, that is the minimization of automata by using Mahin-Nerod theorem. तो अब अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो उसमें कोई उससे अंतर नहीं पड़ेगा आपने किया है या नहीं किया है, बिकॉज बोथ एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द ऑटोमेटा, but the main thing is we must know how to minimize the automata and why we need to minimize the automata. These two things are necessary. So we required to minimize the automata to reduce the complexity of the system, or you can say that complexity of the finite automata. तो जो भी आपको finite automata दे रखा है, तो हम उसको minimize इसलिए करते हैं so that we can reduce the complexity. Suppose anyone asks you how can we reduce the complexity? In that case, you can say that if the number of states are high, yeah, or you can say if the number of states are more, it means the automata will be more complex. If we reduce the number of states in any finite automata, it means that that means the complexity of that particular automata is minimum, right? For example, अगर आपकी 20 states हैं, right? तो अगर आपने 20 states को 12 state में convert कर दिया, it means 20 स्टेट में से 12 स्टेट कम हुआ, दैट इज 8 स्टेट आपकी कम हुई, पहली बात है ना। सेकंड थिंग इज द ट्रांजिशन दैट मूव ऑन दीज एलिमिनेटेड 8 स्टेट्स। जो 8 स्टेट है जो आपने एलिमिनेट कर दी, उनका जो ट्रांजिशन था, है ना, किसी से तो आप मूव कर रहे होंगे, सो ऑल दीज ट्रांजिशंस आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, if we eliminate the number of state or we reduce the number of state, then the overall complexity of the system will be reduced or minimized. So that's why we have to perform the minimization. So basically there are two methods to minimize the automata. First method is what? First method is by using the equivalence class, and second method is by Mahin-Nerod theorem. So if anyone asks you how many methods are you, or these are following methods that are used to minimize the finite automata, तो पहला ऑप्शन लिखा है सपोज इक्विवेलेंस क्लास, और दूसरा लिखा है Mahin-Nerod theorem, तीसरा लिखा है by using pumping lemma, चौथा लिखा है by using Arden theorem. So what will be the right answer? क्वेश्चन रिपीट करूं. Suppose the question is following methods are used to reduce the finite automata, और पहला ऑप्शन है फर्स्ट इज इक्विवेलेंस क्लास, सेकंड इज Mahin-Nerod theorem, third is pumping lemma, and fourth one is Arden's theorem. So which will be the right answer? आप आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं बेटा, आप बोल भी सकते हो. क्वेश्चन समझ में आया नहीं? कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए कौन से मेथड हैं? हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल टू मिनिमाइज द फाइनाइट ऑटोमेटा? भाई वॉइस इज क्लियर? आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का? ईयरफोन यूज करता हूं. यस, yes, very good, Naman. Thank you. Equivalence and Mahin-Nerod theorem. So in this situation, both two options are correct. First one is by equivalence class or equivalence theorem, and second one is the by using Mahin-Nerod theorem, right? तो आपको ये देखना होगा कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसमें एक से ज्यादा सही हो सकते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि केवल एक सही होगा या दो सही होंगे या दो से ज्यादा नहीं हो सकते, हो सकता है कई ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें तीन चीजें सही हों। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल इसी तरीके से पूछ रहा हूं मैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी यूज, पहला ऑप्शन एज ए एक्सेप्टर, एज ए ट्रांसड्यूसर, ऐसे लिखा हुआ, एज ए पैटर्न मैचर और नन ऑफ दीज। सो इन दिस केस व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी यूज एज एक्सेप्टर, कर सकता है क्योंकि पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस ऑटोमेटा और नॉट, आप चेक कर सकते हो। दूसरा, एक्सेप्टर के बाद पैटर्न मैचिंग आप करते हैं ना कि इसके बाद स्टार्ट विद ए एंड विद बी, कर सकते हो, रेगुलर में करते हैं कि नहीं हम लोग, तो ये भी कर सकते हैं पैटर्न मैचिंग। ट्रांसड्यूसर, कि कोई भी हम चीज प्रोड्यूस करना चाहें, मूले और मीरे मशीन, कोई आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो ये भी कर सकते हैं। सो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन और उसकी लैंग्वेज पर कि वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी माही-नेरोड थ्योरम की बात करेंगे और जस्ट एक शॉर्ट में एक मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग माही-नेरोड थ्योरम को अप्लाई करते हैं, एक एग्जांपल लेके। ठीक है, आपको अगर इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस थ्योरम के थ्रू मिनिमाइजेशन अच्छा लगता है, पाई 0 पाई 1 पाई 2 अप टू पाई के प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू पाई के, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर इस ये अच्छा लगता है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट द आंसर आफ्टर मिनिमाइजेशन मस्ट बी द सेम। लेकिन अगर दोनों आपको आते हैं, इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड यूज इक्विवेलेंस क्लास। तो आप इक्विवेलेंस क्लास थ्योरम या इक्विवेलेंस थ्योरम को यूज करें, दिस इज माय सजेशन। और सेकंड थिंग इज, अब अगर हम आपसे कहें कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है और जस्ट मिनिमाइज द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा, या ऐसा हो सकता है कि आफ्टर मिनिमाइजिंग दैट पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा हाउ मेनी स्टेट्स विल बी देयर, so in that case you have to solve the finite automata and then after solving आपको क्या करना पड़ेगा, just you have to check whether total number of states are 3 5 4 whatever। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको क्विज में दिए थे। तो क्विज में अगर हम पहला क्वेश्चन करें तो ये मैक्सिमम सभी लोगों का ये सही है, रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हिच लैंग्वेज, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रेगुलर लैंग्वेज। एंड ये ग्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द राइट आंसर। तो आप लोग नोट कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हाउ, ये मैंने आपको डिटेल में भी समझाया था, आप यू कैन अप्लाई द यूनियन, इंटरसेक्शन और क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर का मतलब क्या था, एस्टिक लगा के जो करते थे, ए स्टार, दैट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए इंक्लूडिंग नल। So all these three operations can be applied on regular expression। तो अब इस क्वेश्चन को मैं चाहूं तो चेंज भी कर सकता हूं, यहाँ पर none of these कर दूं, इन दैट केस यू हैव टू ऑप्ट ऑल दीज थ्री। तो आपको किस पर टिक करना होगा, इन तीनों पे आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना। और एक और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ एनीवन आस्क यू द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर सेट, in that case this is the simple closure property, the regular set is or regular language is closed under union, closure and concatenation। the same question can be asked by another way, first one is this one, and second one is the regular set can be closed under which operation, so this is closed under operation union, concatenation and closure। And similarly the set of all string 0 1 in which all string that begin and end with 0, है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एक बार कि बिगिनिंग एंड एंड रिस्ट्रिक्शन कहां पर है, बिगिनिंग पर और एंड पर। तो बिगिनिंग हमारी शुरू 0 से होनी चाहिए, एंडिंग 0 से होनी चाहिए, बट दैट कैन बी स्ट्रिंग ओवर 0,1 मींस 0 1 का कुछ भी आए बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दिस केस द फर्स्ट वन इज द एप्रोप्रिएट आंसर। अगर मैं इसमें एस्ट्रिक और लगा दूं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था उस समय पर, in that case asterisk लगा दूं, then it is the completely correct answer, but out of these option this is the most suitable, so you must use this one। ये हम लोग कर चुके थे, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ था, ये हम लोगों ने जब डिस्कस किए थे गेट के क्वेश्चन तो उसमें भी था ये हैविंग स्ट्रिंग बी 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 4 बार भी आना चाहिए। तो देखिए पहले कुछ भी आ सकता है, बाद में कुछ भी आ सकता है, बट ये सब स्ट्रिंग है, ये जो 4 बार आना चाहिए, तो दिस इज द राइट आंसर। आप लोग इसको देख सकते हो। ये फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें ये कुछ लोगों का गलत था, इसमें बहुत आसान है ये। इसमें क्या कह रहा है ये, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी
इन विच ए सिंगल ए इज फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ बी, मतलब एक ए आएगा तो बी कितने भी आ सकते हैं, पहली बात। ए सिंगल बी, अब और इसके और क्या है, सिंगल बी आएगा देन फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ ए। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, अगर सिंगल ए आता है तो बी कितने भी आ सकते हैं, अगर सिंगल बी आता है तो ए कितने भी आ सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वी कैन राइट दिस बी ए स्टार प्लस ए बी स्टार और ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार, कुछ भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। क्योंकि बीच में क्या लिखा है, अगर एक ए आ रहा है देन एनी नंबर ऑफ बी, एक बी आ रहा है देन एनी नंबर ऑफ ए can be encountered. So we can write, we can opt this one. This will be the right answer. Similarly, the set of all string AB in which all strings A's and B ending in BB. मतलब any combination of AB आ सकता है, but end किससे होना चाहिए, B B, means continuously दो बार B जरूर आएगा। तो देखिए इसमें भी देखा हमने दो बार B आया, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लिखा है, any combination of AB. So how can we represent this thing? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये सभी लोगों का सही भी था। तो ए प्लस बी स्टार प्लस बी, ठीक। एंड अनदर इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज रॉन्ग। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज, मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, जो हम लोगों ने I1 I2 I3 करके आपको बताई थी, याद होगी शायद आप लोगों को, नहीं तो मैं आपको दोबारा से इस चीज को रिकॉल करा दूंगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ गए अब हमारे, एक या दो लेक्चर एक्स्ट्रा हो गए वीक में, यार ऐसे समझो आप सैटरडे वाले लेक्चर्स इधर शिफ्ट हो गए, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो स्टार्टिंग से हम एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे। तो सारी आईडी थी जिसमें आर प्लस आर इक्वल टू आर था, नल आर इक्वल टू आर नल इक्वल टू आर था, आर 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 स्टार होल स्टार इज आर स्टार, फाई आर इक्वल टू आर फाई इक्वल टू आर आर स्टार। सो दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। अब इसी को मैं आपसे कह सकता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज आर करेक्ट। सो इन दैट केस यू मस्ट ऑप्ट these three correct options. Are you getting my point? तो मल्टीपल चॉइस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर मैं आपको यहाँ पर नल ऑफ एबव कर दूं तो आपको ये तीनों आपको चूज करने पड़ेंगे। तो इन दिस सिचुएशन कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, कि एवरी लैंग्वेज इज डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड बाय ऑटोमेटा, we can convert regular expression to finite automata, every language defined by finite automata can be regular expression. Yes, so all these statements are correct because all these statements are related to the regular expression. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें आप बता सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको हम डिटेल में बताएं, बाकी कई क्वेश्चन हैं जो आपके सही होंगे, आप लोग एक बार चेक करके मुझे बता दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें भी डाउट होगा तो हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यस, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर इस आप मैंने आगे बढ़ा दिया था, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर चेक कर लिए होंगे अपने वाले आंसर से। तो जैसे ये वाला था क्वेश्चन नंबर 12, 0 1 स्टार 0 0, इसमें क्या है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटीज और ऑन द बेसिस ऑफ द आइडेंटिटी यू कैन चेक वेदर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है,
अगर हम केएलपी मिश्रा वाली जो बुक है, जिसकी मैंने आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी भी दी है, अगर मैं उसमें देखूं तो उसमें पूरी एक एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज इन द सेंस कुछ क्वेश्चंस हैं आइडेंटिटीज के जस्ट बाद। तो उन आइडेंटिटीज को उसमें लिखा है द सॉल्व दीज इक्वेशन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। मींस इनको हम जैसे ए स्टार मान लिया, ये भी ए स्टार हो गया, यहाँ पर बीच में कोई बी आ गया, तो इसको हम किस आइडेंटिटी से सॉर्ट आउट करके ये लिख सकते हैं। तो इनमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटी। तो हम लोगों की जो आइडेंटिटीज हैं 12 जो हम लोगों ने डिस्कस की थी एट द टाइम ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वो आइडेंटिटीज जरूर याद, डायरेक्टली यू कैन सी और डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द आइडेंटिटी एंड यू विल फाइंड द आंसर। तो आप इसे कंपेयर करके देख सकते हो। देखो ये क्या था, आर आर स्टार आर इक्वल्स टू आर आर स्टार, यही तो होगा, तो ये एक ही चीज हो जाएगी। इस तरीके से आप अप्लाई करके देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के थे, जैसे ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी गेट का ही क्वेश्चन था। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट 0 to n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इज ए रेगुलर लैंग्वेज। S2 क्या है, 0m 0n और 0 to the power m plus 1 m plus n where m is greater than 1 and n is greater than equals to 2 is a regular। तो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जहां हम कंपेयर की बात करेंगे 0n 1n, तो ये कभी भी रेगुलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आप ऐसे समझ सकते हो, विद द हेल्प ऑफ द finite automata we cannot compare number of a to number of b. The same problem can be solved with the help of the pda। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीडीए किसको एक्सेप्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री को, तो वो रेगुलर नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ देखिए जीरो कितना है 2n, तो 0 to n जितना n आएगा उसका डबल होना चाहिए। तो ये इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। इफ इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट मींस इट विल बी रेगुलर। सिमिलरली जीरो का पावर इटरेशन क्या है m, फिर ये क्या है जीरो का n, फिर जीरो का m प्लस n, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ m हो गया, यहाँ n हो गया, मतलब जीरो आपस में किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दिस कैन बी ए रेगुलर। तो आंसर क्या आएगा, बोथ S1 एंड S2 बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिमिलरली ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, ये वाला भी गेट इसमें 2001 का है ये वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब हम इसमें ट्रू देखें कि कौन सा स्टेटमेंट है, कि इंटरसेक्शन और ट्रू। इसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और गेट में कम से कम 2 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड ऑन चोमस्की क्लासिफिकेशन, है ना। तो चोमस्की क्लासिफिकेशन को आप ध्यान में रख सकते हो कि हमारे पास रेगुलर है, इसका मतलब मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, फिर उसके बाद कम रिस्ट्रिक्शन होगा तो वो रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री हो जाएगी, उससे कम होगा तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगी, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो टाइप 0 होगी। तो अब इन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, अगर हम हमारी कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और उसका हम यूनियन करें कॉन्टेक्स्ट फ्री कौन सा होगा, टाइप 2, जिसके लेफ्ट में कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, राइट। तो अगर हम उसका यूनियन करें तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री मिलेगा। तो ये दिस इज विल बी द राइट आंसर। अब दूसरे और लिखे हुए हैं, इफ ए लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री देन इट ऑलवेज बी एक्सेप्टेड बाय डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, एक्सेप्टेड बाय डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा लिखा है ना, तो इसका ऐसा जरूरी नहीं है। दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑलवेज वर्ड यूज कर रहे हैं ना इसमें, तो इसका मतलब ये नॉन डिटरमिनिस्टिक भी हो सकती है कोई नेचर, लेकिन ग्रामर कैसी हो सकती है हमारी, कॉन्टेक्स्ट फ्री। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, मतलब दो लैंग्वेज अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री तो उनका कॉमन क्या होगा, तो कॉमन का मतलब जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, बट यूनियन हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो ये सिंपल है सारे। एनएफए फंक्शन कैन बी रिटर्न सेट ऑफ स्टेट्स, बुलियन वैल्यू तो आती नहीं है एनएफए के अंदर, है ना, 2 to the power क्यू आता है मीन सेट ऑफ स्टेट्स, और इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स लिख सकते हैं, ये आंसर हो सकता है। this is the particular question based on the pumping lemma. In case of pumping lemma, W string can be decomposed into 3 parts, that is W equals to X, Y, Z, where Y cannot be null, ये था कंडीशन, and X by की पावर I, Z belongs to L for all I greater than equals to 0। तो इसमें क्या आएगा, W equals to X, Y, Z where Y cannot be null, एक तो ये ऑप्शन है, W equals to X, Y, Z where Y may be null, तो बाई कभी भी नल नहीं होता है ना। W स्ट्रिंग कैन बी डिकम्पोज इनटू X, Y, Z, सो दिस विल बी द राइट आंसर।
तो पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट आपको पता रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस एंड पंपिंग लेमा इज बेस्ड ऑन द पिजन होल प्रिंसिपल, ये चीज भी हम लोगों को मालूम रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन ये पुश डाउन ऑटोमेटा एम्प्लॉयज स्ट्रक्चर, किस टाइप की स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को एम्प्लॉय करता है। सो मींस पुश डाउन ऑटोमेटा एम्प्लॉय विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज स्टैक। तो ये हम लोगों को सारी चीजें मालूम है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको डिस्कस किए आज, इसलिए थोड़ा जल्दी में इसलिए किया। अगर आपको इसमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब हम आगे मूव करते हैं हम लोग, और आगे मूव करके अब हम लोग चलते हैं मिनिमाइजेशन वाले पार्ट, जिसकी हम लोग काफी दिनों से बात कर रहे हैं। तो दिस इज द सिंपल वे टू मिनिमाइज द फाइनाइट ऑटोमेटा by using the equivalence theorem, right? So in this case, you should start with the pi 0, that is the set of final state and the set of non-final states, right? And after this, on pi 1, or that is called one equivalence, we will check the nature of the, or we will check the transition of the states. उन सारी स्टेट का हम लोग ट्रांजिशन चेक करेंगे, and we will check whether the transitions are belongs to the same category, same group or not. If it belongs to the same group, then remains the same group, otherwise they will be bifurcate, they will be create a new group. So if the same process will be executed until we will find pi k plus 1 is not equals to pi k. तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि अगर हम आपको ये डायग्राम, ये पूरा टेबल दे दिया, और ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल वी कैन आस्क यू minimize the finite automata and find this automata can be minimized into how much state, or how many state. After minimization, how many state will be there. So just you have to apply the minimization by using any algorithm, and then you should tick the answer, correct answer. You should opt the correct option, right? So अब बात ये, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं by using इक्विवेलेंस थ्योरम और बाय यूजिंग माहिर-निरोध थ्योरम। कभी भी आपसे इक्विवेलेंस मिनिमाइजेशन के केस में आपसे स्पेशली नहीं कहा जाएगा कि आप मिनिमाइजेशन इसके थ्रू करिए, राइट? तो अगर आपको इक्विवेलेंस थ्योरम अच्छे से आती है, नो नीड टू डू द क्वेश्चन फॉर बाय यूजिंग माहिर-निरोध थ्योरम। और मैंने आपको मिनिमाइजेशन के टाइम पे भी बताया था कि मैं माहिर-निरोध इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं माहिर-निरोध को आज स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अब आपको एक मेथड अच्छे से पता है। तो दिस इज द माहिर-निरोध थ्योरम दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द फाइनाइट ऑटोमेटा, फर्स्ट थिंग, राइट? एंड द स्टेप इज दिस इज, इफ एनीवन आस्क यू which method of minimization is based on the tabular calculation. So Mahin-Niroth theorem method of minimization is based on the tabular approach. Tabular approach का मतलब ये हुआ कि we will minimize the finite automata in the form of table. ठीक है? तो first thing is, the first step is draw a table for all pairs of state. जो भी हमें पूरा दे रखा है, हमें स्टेट्स दे रखी हैं, तो जस्ट वी विल ट्राई टू draw a table for all the pairs of state, not necessarily connected directly, all are unmarked initially. देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, जस्ट वी विल ड्रॉ ए टेबल, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। और टेबल कैसे ड्रॉ होगी, जितनी भी स्टेट दे रखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बात करूं डायग्राम में, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ए बी सी डी ई एफ कितनी स्टेट है, 6 स्टेट है। तो देखिए आपने लिखा ए बी सी डी ई एफ, और इस साइड में भी लिखा ए बी सी डी ई एफ। तो द डायगोनल एलिमेंट्स आर, ए से ए का ट्रांजिशन हुआ, बी से बी का हुआ, सी से सी हुआ। तो आप इस टेबल के अंदर कोई भी एक पार्ट यूज करेंगे, यू मे यूज अपर पार्ट और यू मे यूज द लोअर पार्ट। तो नॉर्मली वी विल यूज द लोअर पार्ट, हम इसको अपनी कैलकुलेशन के लिए रखेंगे, इसको फ्रीज कर देंगे, इसकी कोई जरूरत हम लोगों के लिए नहीं है, ये पूरा हमारे लिए बेकार हो गया। इसमें ये वाला भी है ना, तो या तो आप इस पार्ट को यूज करिए या इस पार्ट में करिए कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस पार्ट को फ्रीज कर दिया, अपर पार्ट को, इस पार्ट को,
नाउ वी विल परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन द लोअर पार्ट। ठीक है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। नाउ अब पहला स्टेप क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए टेबल फॉर ऑल पेयर्स ऑफ स्टेट क्यू आई क्यू जे नॉट नेसेसरी कनेक्टेड डायरेक्टली। मतलब क्या हुआ, जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से जिसमें सारी स्टेट्स हमारी आ जाएंगी, सारे पेयर, जैसे ए तो ये तो सारे पूरे हमारे ब्लैंक हो गए, इनको तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिशन किस तरीके से। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, ए बी, इसका नाम क्या हुआ ए सी, क्योंकि ए ऊपर है सी यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा ए डी, ये क्या होगा ए ई, ये क्या होगा ए एफ। सिमिलरली इसका नाम क्या होगा बी सी। तो बी सी का मतलब क्या हुआ, दिस इज द सिंपल पेयर ऑफ स्टेट, बी एक स्टेट होगी और दूसरी सी भी एक स्टेट होगी। तो जैसे हम लोग अल्टीमेटली द बेस इज कॉमन, द ऑब्जेक्टिव इज सेम, तो कहीं ना कहीं दोनों का फंक्शनिंग जो है वो सेम होगा। मींस जस्ट इन द केस ऑफ इक्विवेलेंस वी विल try to check the nature of the state through the transitions. On the same thing can be used same thing can be displayed with the help of the table. तो कैसे करेंगे देखिए आप लोग। अभी पहला स्टेप ये हुआ, जस्ट ड्रॉ द टेबल, पहली बात, ठीक है ना। ऑल आर अनमार्क इनिशियली, अनमार्क का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर किसी को मार्क नहीं करेंगे, केवल टेबल डिजाइन करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, लोअर पार्ट को अपने पास रखेंगे। second step, it is the most important step, that is consider every state pair, means you have to consider all the pair। और पेयर कहां से आएंगे, जो हमने टेबल बनाया है, राइट, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, लाइक दिस। so in this case where this is the pair qi qj, where qi belongs to final state and qj should not be belongs to the फाइनल स्टेट और वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग ऐसे पेयर्स को टेक करेंगे जिसमें एक स्टेट फाइनल स्टेट को एक स्टेट फाइनल स्टेट को बिलोंग करती हो और एक स्टेट नॉन फाइनल को करती हो, ऐसा ग्रुप हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेकंड वाला दोबारा स्टेप बता देता हूं मैं। जस्ट वी विल चेक एवरी स्टेट पेयर क्यू आई क्यू जे, ठीक है, वेयर qi belongs to final state and qj should not belongs to the final state और वाइस वर्सा, and mark them, उनको हम मार्क करेंगे। दोबारा देखो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखिए एक पेयर लिया, ये वाला जो पेयर होगा ये क्या आएगा, ए बी। तो देखिए ए और बी, तो ए बी में एक स्टेट कैसी होनी चाहिए, ए एक फाइनल होनी चाहिए, कोई सी भी एक। ए क्या फाइनल है, नहीं है, तो ए इनिशियल है, तो बी फाइनल है क्या, बी भी फाइनल नहीं है। बी नॉन इनिशियल है, तो क्या ए फाइनल है, ए भी फाइनल नहीं है। तो इस पेयर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा पेयर कौन सा बचेगा, इसके बाद क्या आएगा, ए सी, ए सी। तो देखिए ए कैसा है आपका, नॉन फाइनल, और सी कैसा है आपका, फाइनल। तो ये पेयर हमारा कैसा हो गया, नॉन फाइनल फाइनल, या ऐसे कहो फाइनल नॉन फाइनल, ऐसे ही तो हुआ। सी हमारी फाइनल स्टेट है और ए हमारी नॉन फाइनल है। इनिशियल की तो कोई बात हम उसमें भी नहीं करते थे, यहां भी नहीं कर रहे हैं। सो इन दिस केस जस्ट मार्क दिस, इसको आप क्या करोगे, सी को मार्क कर दोगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ये सी आपने मार्क कर दिया। नाउ ए डी, अब देखिए ए कैसा है, नॉन फाइनल, और डी कैसा है, फाइनल, इसको मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट इज ए ई, तो ए आपका कैसा है, नॉन फाइनल, ई कैसा है, फाइनल, तो आपने ए ई को फाइनल मार्क कर। यहां तक क्लियर है बात। नेक्स्ट इज, अब आ गए आप बी वाले लाइन में, तो बी सी, तो देखिए बी हमारा नॉन फाइनल है और सी हमारा फाइनल है, तो जस्ट वी कैन मार्क, इस ब्लॉक को भी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट इज बी डी, बी इज नॉन फाइनल, डी इज फाइनल, सो जस्ट मार्किंग। मतलब हम सारे पेयर्स कंसीडर करेंगे, तो सारे पेयर कंसीडर करने का एक, दिस इज द बेस्ट मेथड, दैट इज द टेबुलर फॉर्म। तो सारे पेयर आपके पास आते जाएंगे, जस्ट वी हैव टू मार्क ओनली दोज पेयर in which for one state belongs to the final and second one belongs to the non final और vice versa। पहले दूसरे का कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि एक स्टेट फाइनल को बिलोंग करना चाहिए और एक स्टेट उस पेयर में से नॉन फाइनल को करना चाहिए। तो नाउ बी ई, so you can see here B is non final, E is final, so just mark B। again C D, so C and D both are final, तो इसको भी मार्क नहीं करेंगे, तो देखो मैंने मार्क नहीं किया। नाउ सी ई,
C is final, E is also final, so we will not mark them. इसको भी mark नहीं करेंगे. Now CF, you can see C is final, F is non-final, so just we will mark. After this DF, D is final and F is non-final, so just we will mark. And after this EF, E is final and F is non-final, so we will mark. और F और F ये तो पहले से ब्लॉक में आएगा, ये तो इसी जैसे ग्रीन कलर यहाँ हुआ है ना, इसमें भी ग्रीन कलर होगा बिकॉज इट इज डायगोनल. तो डायगोनल से लोअर वाला पार्ट हम लेंगे, अपर वाला डिस्कार्ड. सेकंड स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना. यहां तक क्लियर हो गई बात. अब हम लोग थर्ड स्टेप की बात करते हैं. नाउ रिपीट दिस स्टेप until we cannot mark any more state. The important point is if there is an unmarked pair. अब इसमें क्या हुआ कि आपने देखा कि एक स्टेट पेयर में एक स्टेट फाइनल को बिलोंग करती थी, एक कोई भी स्टेट नॉन फाइनल को बिलोंग करती थी, और आपने उस पेयर को, आपने उस ब्लॉक को मार्क कर दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल द अनमार्क्ड पेयर. पहली थिंग, अनमार्क्ड पेयर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे. और अनमार्क पेयर में हम लोग, अनमार्क पेयर का मतलब क्या होगा, अनमार्क ब्लॉक का मतलब क्या होगा, उसमें जो दो पेयर हैं स्टेट के, उनके ट्रांजिशन चेक करें. जस्ट वी हैव टू चेक द ट्रांजिशंस ऑन अनमार्क ब्लॉक. अनमार्क ब्लॉक पर ट्रांजिशन चेक करेंगे. ट्रांजिशन किस पर करोगे, इनपुट पर. तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि ट्रांजिटिविटी रिलेशन तो बन रहा है क्या. ट्रांजिटिविटी रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेट पर ट्रांजिशन करने के बाद, जैसे QI और QJ दो स्टेट का आपका पेयर है, तो QI पे A अप्लाई करने के बाद आप कहां जा रहे हो, QJ पर A अप्लाई करने के बाद कहां जा रहे हो. अगर इफ वी आर मूविंग फ्रॉम QI टू ए पर्टिकुलर स्टेट और QJ टू पर्टिकुलर स्टेट, और ये वाला पेयर पहले से मार्क है, तो हम इसको भी मार्क कर देंगे. देखिए कैसे. अभी कौन सा पेयर बचा था हमारा जो अनमार्क नहीं था. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, किसी की भी ले सकते हैं, इसकी बात करते हैं. AF ये मार्क नहीं है ना पहले से, आप देख सकते हैं AF मार्क नहीं है ना. AF मार्क नहीं है. अब देखो क्यों नहीं था AF मार्क, बिकॉज A कैसा है, नॉन फाइनल, और F भी कैसा है, नॉन फाइनल. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, A पर ये देखो कि A पर 1 मिलने से आप कहां जाते हो, C पर. ठीक है. और F पर 1 मिलने से कहां जा रहे हो, F पर. जस्ट चेक द ट्रांजिशंस ऑन AF, क्योंकि AF आपका अनमार्क ब्लॉक है, तो जितने भी अनमार्क ब्लॉक हैं हम उनके ब्लॉक पर ट्रांजिशंस चेक करेंगे. तो A पर 1 रीड करने पर आप जाते हो C पर, और F से 1 रीड करने के बाद आते हो आप F पर. तो हमारा आउटपुट क्या आया, इसके A के बाद 1 को रीड करने के बाद आ गए आप C पर, और F को 1 रीड करने के बाद कहां आ गए, F पर. तो CF को देखेंगे हम, क्या CF हमारा पहले से मार्क है. Now you can see here CF, it is already marked, तो हम इसको भी मार्क कर देंगे. दोबारा देखो इस चीज को, this is very important point here, कि now these are the unmarked block, all these are the unmarked block. इनको हम लोग अपने समझने के लिए टिक लगा लेंगे कि ये अनमार्क्ड है. अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जो मार्क हो गए वो तो अच्छी बात है, जो अनमार्क हुए हैं, जस्ट वी विल ट्राई टू चेक द ट्रांजिटिविटी रिलेशन. How can we check the transitivity relation? You can see here, ये वाला ब्लॉक का नाम क्या है भाई, इस ब्लॉक का AF, राइट. तो अब देखिए A स्टेट ये है और F स्टेट ये मार्क क्यों नहीं हुआ, ये तो हमें पता है क्यों नहीं हुआ, बिकॉज बोथ आर द नॉन फाइनल स्टेट. अगर एक फाइनल और एक नॉन फाइनल होती तो ये मार्क हो चुका होता, सिमिलर टू द अदर स्टेट पेयर. तो अब हम क्या करेंगे, इस A स्टेट पर अप्लाई करके देखो 1 को, और ये देखो आप कहां जा रहे हो, ये तो डायग्राम से देख सकते हैं हम लोग. और F पर, क्योंकि हमारा इस पूरे ब्लॉक का जो स्टेट पेयर है वो क्या है, AF. तो A पर हमने देखा, सिमिलरली वी हैव टू अप्लाई ऑन F पर अप्लाई करो, और इसके बाद आपको क्या पता चला, F पर. तो हमारा आउटपुट इस AF पेयर का जो हमारा, सॉरी AF पेयर का जो आपने ट्रांजिशन चेक किया है, किस पर चेक किया है, ट्रांजिशन 1 पर. तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, C, F. तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम CF को चेक करें एक बार, कि CF कहीं मार्क तो नहीं है. नाउ यू कैन सी हियर CF इज ऑलरेडी मार्क, तो हम इसको भी मार्क कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिटिविटी. अब आपने ये कैसे कर दिया,
दिस इज द एल्गोरिदम गिवन बाई माहिर-निधो। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर इसका ट्रांजिटिविटी, ये CF स्टेट अगर हमारी पहले से ही मार्क्ड स्टेट है, देन वी विल मार्क दिस AF। बात समझ में आ गई? तो AF मार्क हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी अनमार्क्ड पेयर हैं उन सभी को हमने चेक किया, तो आप यहां देख सकते हो ये भी मार्क हो गया। अब AF को क्यों नहीं किया, आपका ये डाउट आ सकता है, तो हम AF को भी चेक कर लेते हैं। सॉरी, AB को मार्क नहीं किया ना हमने इसके बाद भी, तो क्यों नहीं किया? क्योंकि ट्रांजिटिविटी रिलेशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा होगा। देखो चेक कर लेते हैं। ए को देखिए 1 रीड करने के बाद C पर जा रहे हो, B से 1 रीड करने के बाद कहां जा रहे हो? D पर। CD को देखो, क्या CD है? CD कैसा है? दिस इज द CD ना, तो ये C और D कैसा है? अनमार्क्ड, तो इसका मतलब ये मार्क नहीं होगा। अब किसी को भी देख सकते हो, इसको देखना चाहते हो BF, तो BF को देखो, B कहां है? दिस इज B एंड दिस इज F। अब देखो 1 को रीड करने के बाद कहां जा रहे हो? D पर, और 1 को रीड करने के बाद F पर, तो DF को देखो क्या फाइनल है? मार्क है? DF, D और F मार्क है, इसका मतलब ये वाला BF क्या हो जाएगा? मार्क होगा, है ना? इस तरीके से हम लोग इसको परफॉर्म, देखो मार्क। तो वी विल ट्राई टू मार्क द स्टेट पेयर विद ग्रीन कलर, जो हमने लिख रखा है इसमें। इफ वी इनपुट 1 टू स्टेट A एंड F, वी विल गो टू द स्टेट C एंड F रेस्पेक्टिवली। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं प्रूव करके। इट इज ऑलरेडी मार्क, हेंस वी विल मार्क द पेयर AF। तो इस तरीके से हमने मार्क कर दिया, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही है? उसके बाद दैट इज द फाइनल स्टेट। आफ्टर स्टेप 3 वी हैव गॉट स्टेट कॉम्बिनेशन। तो अब हमारे स्टेट कॉम्बिनेशन कौन से आ गए? अब आप वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो अनमार्क्ड हैं। अनमार्क का मतलब क्या हुआ? जिनका कोई भी ट्रांजिटिविटी रिलेशन नहीं। अब इसको इनडायरेक्टली थोड़ा सा सोचेंगे आप, तो क्या मतलब होगा कि जिनकी कहीं ए से मैं अगर बी पर जा रहा हूं, बी से सी पर जा रहा हूं, दैट मींस ए एंड सी आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना? अगर ऐसा भी नहीं है, कोई ट्रांजिटिव रिलेशन भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो अनमार्क होगा। तो जस्ट फाइंड आउट द अनमार्क पेयर। क्या क्या होगा? ए बी अनमार्क पेयर हो गया, और कौन सा नहीं मार्क हुआ? सी डी नहीं मार्क हुआ, सी ई नहीं मार्क हुआ, और डी ई नहीं मार्क हुआ। तो ये सारे अनमार्क पेयर आप ले सकते हो, और उनको आप क्या करोगे? उन सभी पेयर को अब आप कंबाइन कर दोगे। देखो सी डी ई एफ, इनको जब आप सी डी सी ई सी डी, इनको जब आप कंबाइन करोगे तो क्या बनेगी? सी डी ई। देखो सी डी, अब सी लिख चुके, ई नहीं लिखा तो ई आ गया इसमें, और डी लिख चुके, ई लिख चुके, तो सी डी ई आ जाएगा कंबाइन होने के बाद। ये फाइनल स्टेट है सी डी ई, आप चेक कर सकते, डायग्राम में चेक कर सकते हो। और ए बी दोनों कैसी है? नॉन फाइनल। तो ये हमारी, ये पूरा ग्रुप आ गया। क्या क्या हमारा ग्रुप बना? ए बी एक पेयर बन गया हमारा, और एक पेयर बन जाएगा सी डी ई का, क्योंकि ये पूरा किसका बन गया? फाइनल का। ये किसका बन गया? नॉन फाइनल का। और बाकी जो डायग्राम में स्टेट हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो दिस विल बी द फाइनल मिनिमाइज ऑटोमेटा। देखो आप, ए बी हमारी मिनिमाइज हो गई। अभी जैसा मैंने आपसे कहा था, ए बी एक ग्रुप रहेगा, सी डी ई फाइनल का ग्रुप था, एक बन गया, और बची हुई स्टेट कौन सी थी? एफ। तो एफ हमारी, तो दिस विल बी द फाइनल रिड्यूस्ड मिनिमाइज ऑटोमेटा बाय यूजिंग माहिर-निधो थ्योरम। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे डाउट डिस्कस करें। आज आप लोगों का कोई मैसेज नहीं आ रहा है? वॉइस तो आ रही है मेरी क्लियर? या ये समझ लिया आपने कि पहला वाला मेथड अच्छे से आ गया है, दूसरे को सुनने की कोई जरूरत नहीं है? ऐसा तो नहीं है? तो हम लोगों को मालूम रहना चाहिए, है ना? पता रहना चाहिए, कोई भी कोर्स में ऐसा टॉपिक ना हो जो हम लोगों ने नहीं किया। इसलिए मैंने आपको ये भी करा दिया, जरूरत नहीं थी, क्योंकि यू कैन अप्लाई द इक्विवेलेंस मिनिमाइजेशन क्लास और इक्विवेलेंस थ्योरम टू मिनिमाइज द ऑटोमेटा। लेकिन स्टिल आपको पता रहना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछता है तो आपको ऐसा लगता है कि मालूम ही नहीं है। हाँ, फाइनल नॉन फाइनल बेटा इसलिए पता ऐसे चला कि आपने ये जो बनाया था इससे पहले, देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो आप, ये फाइनल और नॉन फाइनल तो यहाँ पर लिखी हुई है ना। तो शुरुआत में जो हमने बात की वो तो हमने सारी स्टेट को लेके बात की है, ठीक है? उनके बीच में रिलेशनशिप निकाल लिया, सारे ब्लैंक छोड़ दिए पहले, फिर ब्लैंक के बाद देखा कि जो फाइनल है और जो नॉन फाइनल है उसकी बात करी, ठीक है ना? उसको टिक लगाते हुए चले गए सारे। अब ये ब्लॉक ऐसे बच गए जो अनमार्क्ड हैं। अनमार्क्ड में हमने ये चेक किया कि कहीं ट्रांजिटिव रिलेशन में तो कहीं ये मार्किंग नहीं है। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन में कहीं भी मार्किंग है तो उसको भी मार्क कर दिया। दैट इज स्टेप नंबर 3।
अब स्टेप नंबर 3 के बाद आप क्या करेंगे, जितने अनमार्क्ड हैं इसका मतलब आप उनको कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। अनमार्क को, सारी अनमार्क स्टेट को कंबाइन करोगे। जब आप कंबाइन करोगे तो क्या आया, ए बी स्टेट हो गई, सी डी, ये सारी स्टेट आ गई जो अनमार्क है। अब इनको आप मर्जअप करेंगे, तो जब आप मर्जअप करेंगे तो आप देखिए सी डी आया, तो डी के बाद ई आया, और ई किसके साथ आया, सी के साथ आया। तो ये तीनों का तो एक ही स्टेट बनना है। देखो आप, सी कहीं से भी शुरू कर दीजिए, आप डी से कर लीजिए, मान लो डी ई, और ई से कहां गए, सी पर, और सी से कहां, डी पर। लेकिन कहीं भी यहां पर मार्किंग नहीं है। अगर मान लीजिए बी इसके साथ और आता तो हमारी मार्किंग इसके साथ भी होती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे नॉन मार्क स्टेट हैं इनमें भी दो ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप तो ये हो गया सी डी, डी ई और ई सी बन गया एक, तो सी डी करके बन गया, और ए भी हमारा इंडिपेंडेंट रहेगा। और ऐसा क्यों हुआ है, द बैकग्राउंड इज बिकॉज the nature of these two the nature of these 1 2 3 4 groups are different। कैसे डिफरेंट है, किस बेसिस पर डिफरेंट है, इस ये वाले जो तीन ग्रुप हैं ये फाइनल स्टेट के बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका नेचर देखो आप मैच कर रहा है। देखो आप, सी डी, डी ई और ई सी आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, बट ए बी पूरी तरीके से क्या है, डिस्कनेक्टेड है। तो ए बी अलग रहेगा, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। आपको अगर मैं सिंपल कहता हूं इनको मर्ज कर दो, तो मर्ज करोगे तो ए बी, तो बी सी तो आ ही नहीं रहा कहीं पे भी। तो इसलिए अगर यहाँ पर डी की जगह बी होता तो फिर हमारा इसके साथ मर्ज होता है ना। तो इसीलिए, और हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं डायग्राम हमारे सामने होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम हम देख सकते हैं कि ए बी कैसा है, कैसा है, नॉन फाइनल। तो ये एक साथ रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, फाइनल के साथ तो मर्ज होगा नहीं। और सी डी सी डी, सी डी सी सी ई, ये सारे, ये तीनों कैसे हैं, फाइनल। तो ये तीनों आपके मर्ज हो गए। तो फाइनली जो हमारा डायग्राम आएगा उसमें क्या हुआ कि एक ग्रुप तो ये बन गया मर्ज होके, ये फाइनल तीनों एक हो गए, और लास्ट में हमारा अकेला एफ बचा। तो टोटल स्टेट कितनी आ गई, 1 2 और थर्ड इज एफ, ये तीन स्टेट आएंगी। तो ये इसलिए इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो आप यहां पर देख सकते हो, इस समझ आया बेटा, क्लियर हुआ, थैंक यू उन्नति। और बेटा, हाँ बेटा रोशनी, अभी हम फर्स्ट मॉड्यूल की बात कर रहे हैं ना। सेकंड मॉड्यूल में हमने चॉम्स्की क्लासिफिकेशन कंप्लीट करा दिया, और उस क्लासिफिकेशन का यूज कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट मॉड्यूल में भी, कोई अगर आपसे ग्रामर के बारे में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो बता दिया। अब हम लोग, आप जैसा कहेंगे, आप लोग अगर चाहेंगे कि सेकंड मॉड्यूल आगे बढ़ाओ तो मैं आगे कल से आगे सेकंड मॉड्यूल बढ़ा दूंगा। अगर आप कहते हैं कि एक बार सर फर्स्ट मॉड्यूल को थोड़ा सा रिवाइज करा दो, तो मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट मॉड्यूल को रिवाइज करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपके साथ सारी स्लाइड्स भी शेयर की हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। आप मुझसे जैसा कहेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वैसा स्टार्ट करें, ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ बेटा, मेघा दोनों ले सकते हैं, किसी एक पे भी जीरो इनपुट, जैसे मैंने 1 लिया था, आप जीरो पे भी चेक कर सकते हो, 1 पे भी कर सकते हो, किसी में भी अगर ट्रांजिटिव रिलेशनशिप आएगी तो हम उसको मार्क कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, जीरो भी ले सकती हो। तो कल आप जैसा कहेंगे आप लोग डिसाइड कर लीजिए, अगर कहेंगे तो हम फटाफट रिवाइज करा देंगे। तो आपका एग्जाम आ रहा है तो आप लोग इसके साथ में पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।